something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving. हाय देयर, वेलकम टू द शो जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से बात करते हैं एंड उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. इन दिस शो वी हैव कुलवंत विद अस. द इंटरव्यू वेंट ग्रेट. बहुत सीखने को मिला पर्सनली फॉर मी एज वेल. बट देर इज दिस स्मॉल टेक्निकल ग्लिच दो. वी वर नॉट एबल टू रिकॉर्ड माई वीडियो एंड वो प्रॉब्लम हो गया. बट माई ऑडियो इज परफेक्टली फाइन, सो यू कैन स्टिल हियर मी. Also, I would like to thank you for the amazing feedback that you have been giving to me. First video पर जो response था, that was tremendous, much better than what I have expected. And shout out to Gargi for amazing feedback. Thank you so much. And support has been great. I know the lighting, the video quality is not the best, but I must tell you that you should view this video because it is one of the best internet marketers that we have in the industry. You will learn a lot from him. Thanks. Let's get right into the show. Hey there, this is Ahmed and welcome to the show जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से बात करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. तो आज हम जिससे मिलने वाले हैं उनका नाम है कुलवंत नागी. कुलवंत नागी is one of the India's top blogger and one of the best internet marketers that I have seen in the blogging industry. So let's get chat with him. So Kulwant, thank you so much for giving your time. Hello, Ahmed. Thanks for having me today. I'm very much honored in this interview. Yeah. Great. So Kulwant, हम आज जो है बिल्कुल ही beginning से शुरू करते हैं, ठीक है? Okay. So where did you grow up? I got grow up in I would say very normal city. It's named Fatehabad. It's so backward that most of the people are not even aware about the Fatehabad. Not even the people who are living in Haryana. Whenever we go to them and we say, "I'm from Fatehabad," and they ask, "Where is it?" Achha. So I'm from Fatehabad, and this is very backward area. But luckily, I got the mindset to grow big in this backward area. तो वहां से आप कैसे ignite किया अपने आप को? It all started in 2004 when I went for my diploma in Ambala city. I completed my diploma. I spent 3 years in Ambala city, and then after that I decided that I should go for the bachelor's degree as well. So I prepared for the exam and then finally got the admission in Gurgaon in one of the most reputed colleges, ITM, Institute of Technology. Wow. So I got the admission there, and then at that stage I was very weak in English. Like English was very big, daunting task for me. Like how would I cope up with such a big player, such a big students when they are very good in English and I'm nothing in front of them, right? So at that stage I realized that I should do something at my own, because see, most of the people are interacting with each other in English language only, and I was not good at that. So I started putting the efforts, and then finally I prepared for the GRE exam, TOEFL exam, and I got good marks in both of them. And I got admission in 6 universities in USA, right? Wow. So one of the college offered me $16,000 scholarship. That was a big scholarship for me. So finally I decided that yes, I'm going to opt this college. The college was RIT, Rochester Institute of Technology. Achha. So I decided that I'm going to go for this particular college because the stream which I was looking was available in that particular college, and they offered me a $16,000 scholarship, right? So there I decided that yes, I'm going to go there. But finally, at the last stage, I found that my father didn't have the money to afford my education fee, right? So that was a very bad period for me, because my dreams got shattered, my plans and everything got like ruined in front of my eyes. Finally, I decided that yes, this is something which I can't do in my life. Going to USA is not possible for me right now because my father don't have the money. So then I went for a job
which was in the exact field which I was looking. Then I got job. I worked for 6 months in that particular job. What kind of job was it? It was a VLSI verification job. I was working as a verification engineer. You might have heard about integrated circuits, the circuits which are everywhere in every electronic device, in your mobile, in your every electronic device. So I was working as a verification engineer in that particular field. I was happy with my work, but not with my salary, because they were giving me 12,000 rupees per month, and I was not happy with that. Because And what year was this? it was 2010. Yeah. Okay, 2010. So Yeah. आपने कौन सी डिग्री ली थी? Like कौन सी? I did BTech in electronics and communication. अच्छा, तो और आपका जो है कंप्यूटर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कब हुआ था? When did you saw the computer and did it interest you at the first, और वो कैसा था इंटरेक्शन? कंप्यूटर से मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन तब हुआ जब मैं 6th क्लास में था. हमारे स्कूल में कंप्यूटर आया, और हमें तब उन दिनों में डॉस होता था. उन दिनों में हमने विंडोज नहीं देखा था. उन दिनों में हमें डॉस पे काम करवाया जाता था, और कुछ गेम्स होती थी बहुत ऑकवर्ड सी गेम. डॉस में जाके वो कमांड लगती थी और वो गेम चल पड़ती थी, और सारा दिन हम गेम्स खेलते थे, राइट. बिल्कुल. उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा. तो 10th क्लास में जाके थोड़ा और इंटरेस्ट बना कि हाँ यार कुछ चीज तो है. आई वाज इन 10th इन 2002. तो 10th में थोड़ा चीजें समझ आई कि यार कंप्यूटर नाम की कुछ चीज तो है. बट उन दिनों में ये होता था कि यार कंप्यूटर को हाथ लगाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था, राइट. और इंडिया में तो बहुत ज्यादा इट वाज अ बिग थिंग कि उसको हाथ भी नहीं लगाना है. एग्जैक्टली. तो 2002 में थोड़ा इंटरेस्ट बना कंप्यूटर का. तो फिर मैंने एक ट्रेनिंग भी किया, 3 months का ट्रेनिंग फ्रॉम एप्टेक. You might have heard about Aptech. Yes, it was a very big institute at that time. Exactly. उसका नाम था. Yeah. तो मैंने Aptech से एक 3 months का basic course किया, and then I got more interest about computer and all. And I was the sharpest student in my class, because जो भी चीजें वो समझाते थे मैं उनसे और ज्यादा समझने की कोशिश करता था. भाई ये बताओ कैसे होता है, ये बताओ कैसे होता है, मुझे ये जानना है. और टीचर्स लाइक भाई तुझे सब कुछ ही जानना है क्या? एंड आई वाज लाइक मुझे जानना है. ये क्यूरियस होने का ये एक फायदा है. Exactly. है ना. तो और फिर आपने इंटरनेट को कैसे डिस्कवर किया? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने देखा यार ये भी कुछ दुनिया है? एग्जैक्टली. इंटरनेट हमें पता चला 2012 में, जब मेरे कुछ दोस्त आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि यार तुझे पता है कुछ भी अगर हमें देखना हो ना तो हम कंप्यूटर पे जाके देख सकते हैं, लाइक एवरीथिंग. मैंने बोला यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बोला चलो हम चलते हैं. उन दिनों में याहू मैसेंजर हुआ करता था, तो मेरी सबसे पहली इंटरेक्शन जो हुई थी वो याहू मैसेंजर के साथ. देखो उन्होंने बताया कि यार ये देखो यहाँ पे बैठ के हम लॉगिन कर सकते हैं, पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं. तो मी वाज लाइक वाओ मैन, सिटिंग एट माय होम एंड टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स. I remember that time जब Yahoo Messenger was so big. 2004, yeah, when I was in yeah. Great. तो उन दिनों में थोड़ा और इंटरेस्ट बना. फिर घर वालों से पैसे मांगने की. उन दिनों 25 रुपए पर आवर इंटरनेट होता था. वाओ. तो मुझे याद है हमारे यहाँ 10 रुपीस था वो एट दैट. यहाँ 25 रुपीस था 2004 में. तो घर वालों से पैसे लिए जाके इंटरनेट यूज करना, देखना. उन दिनों में क्या सबसे ज्यादा क्रेजीनेस क्या होती थी, जाके एक साइबर कैफे पे सबसे पहले जाके गेम डाउनलोड करनी सबसे अच्छी वाली और 1 घंटा वो गेम खेल के आनी, दैट्स इट. और वहां से इंटरेस्ट बढ़ता गया. फिर जब मैं 2004 में डिप्लोमा मेरा एडमिशन हुआ तो हमारा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर का. ऑब्वियसली आई वाज इन डिप्लोमा, सो देयर वाज ए सब्जेक्ट इन कंप्यूटर. सो मेरे टीचर को पहले 1 हफ्ते में पता चल गया कि दिस गाय इज समथिंग स्पेशल. तो कॉलेज में जो भी टास्क होता था कंप्यूटर का, इज इट नेटवर्किंग, इज इट इंटरनेट, इज इट मॉडर्न, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी भी डिपार्टमेंट है तो कुलवंत जाके देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, राइट. और मुझे ये टास्क असाइन किया गया कि क्लास के सारे बच्चों का ईमेल एड्रेस आपने बनाना है. सो वाओ. 2004 में जो ईमेल एड्रेस मैंने अपने दोस्तों के बनाए थे वो आज भी वही ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं. वाओ. That must be a huge thing. या कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट था मेरे लिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था. और मैं सिर्फ लगा रहता था सर ये बताओ सर. उन दिनों में हाँ फ्लॉपी हुआ करती थी 2004 में. तो सर को बोलते सर फ्लॉपी में ये डाटा डाल के दे दो. और फ्लॉपी होती थी मेरे ख्याल से 1 MB or 2 MB, I don't know. Something like that. 1.44. एंड देन उन दिनों में फिर पेन ड्राइव आ गए. फिर अपनी जेब में 512 MB का पेन ड्राइव होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कुलवंत के पास 512 MB का पेन ड्राइव.
It was like a big thing. अभी तक तो बात भी नहीं पहुंची थी। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे वो पेन ड्राइव 5.2 MB से 1 GB, मतलब धीरे धीरे चीजें एडवांस होती गई और धीरे धीरे चीजों की समझ आने लगी। तो मैं ये बोलूंगा कि कंप्यूटर का इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही हो गया था, जैसे ही मेरा इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ हुआ था। और आप कहोगे कि ब्लॉगिंग करने के लिए क्या कंप्यूटर का इंटरेस्ट जरूरी है? ब्लॉगिंग करने के लिए कंप्यूटर का एज सच इंटरेस्ट जरूरी नहीं है। You should know the basic skills, how to operate with the computer, copy paste, normal सी things, and how to type on your computer. क्योंकि बहुत सारे समझते हैं कि यार मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, तो how do I get started, है ना? No, blogging is all about writing. If you can type on your computer, you can become a good blogger. Because see, there is a simple formula. पूरी दुनिया में हर किसी स्किल को लेके कोई ना कोई लोग बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं who are good in designing. There are some people who are good in logo designing. There are some people who are good in installing the WordPress. So rather than spending your time, or I would say wasting your time, find the people who are good in that particular skill, hire them, pay the money and get the work done. Starting में क्या था कि मुझे जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक बंदे को फोन किया। His name is Siddharth Rajshekhar. He's from Hyderabad. No, sorry, Bangalore. He's from Bangalore. So मैंने सिद्धार्थ को फोन किया, सिद्धार्थ, how to install WordPress, and he was like, okay, तुम्हें WordPress भी install नहीं करना था? I said, this is my first day in blogging, and tell me how to install WordPress. And he said, okay, Kulwant, if you are facing this problem, I'll do one thing. I'll write an article for you. You just read the article tomorrow, and you will know how to install the WordPress, right? So ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो एक नॉर्मल सा बंदा कर सकता है, जिसको बहुत बेसिक सी नॉलेज है कंप्यूटर की। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, यू कैन फाइंड ए गुड फ्रेंड हु इज इनटू ब्लॉगिंग। आप उनको जाके बोलो कि यार मुझे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, आप कर दो। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स विल डू इट फॉर फ्री फॉर यू। और एंड व्हाट ईयर वाज दिस व्हेन यू कॉल्ड द सिद्धार्थ? इट वाज जुलाई 2011। वाओ, जुलाई 2011। I started my first blog in September 2011, क्योंकि पहले 2 महीने मैंने सिर्फ रिसर्च किया कि ब्लॉगिंग क्या है, किस तरीके से मॉडल वर्क करता है। उन दिनों में मेरे पास एक डायरी होती थी, जो डायरी मैंने अभी लास्ट वीक खोल के देखी। बाय चांस मैं अपना सारा स्टफ देख रहा था और वो डायरी मेरे हाथ में लगी, तो मैंने खोल के देखा, यार मैं हर चीज लिखता था कि कौन कौन से ब्लॉग्स अच्छे हैं, कौन कौन सा प्लगइन होता है एक ब्लॉग में, क्या चीजें होती है, क्या साइड बार होता है, क्या नेविगेशन होता है। आई यूज्ड टू राइट एवरी डैम थिंग। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और चलो इंटरनेट तो आप यूज कर रहे थे, लेकिन आप हाउ डिड यू डिस्कवर ब्लॉगिंग? आपने ब्लॉगिंग को कैसे डिस्कवर किया? आपको कैसे पता चला यार ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक नीश है? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जो ब्लॉगिंग किया करता था। 2008 की बात है, वो मेरे घर में आया और उसने अपना गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड खोल के मुझे दिखाया कि देख कुलवंत, मैंने एक ब्लॉग बनाया है जो कि ब्लॉगर पे है, और ये देख ट्रैफिक भी आती है उसको। अच्छा, अच्छी बात है, ट्रैफिक आती है, मतलब तू इंडिया में बैठा और तेरे ब्लॉग को पूरी दुनिया से लोग पढ़े, इट्स गुड थिंग। यस। फिर उसने नेक्स्ट चीज दिखाई, देख यार एक यार गूगल एडसेंस नाम की भी चीज होती है, भाई वो क्या होता है? फिर जब अपना गूगल एडसेंस खोला, देख कुलवंत पैसे भी बनते हैं। मुझे लगा कि यार कुछ तो है, लेट्स ट्राई। तो 2008 में मैं प्रिपरेशन कर रहा था GRE और TOEFL की, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे पाता। लेकिन जब 2010 में, एंड वन मोर फनी थिंग, दिसंबर 2010 में मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन किया एज ए वेरिफिकेशन इंजीनियर। जून 2011 में मैंने रिजाइन दे दिया, बिना ये सोचे समझे कि मैं आगे लाइफ में क्या करने वाला हूँ। वाओ, दैट वाज अ बिग स्टेप। बट मुझे ये पता था कि भाई जॉब से तो अच्छा ही करूंगा, क्योंकि यहाँ 12,000 की सैलरी देके कितना खून निचोड़ देते हैं, इससे तो कुछ अच्छा ही करूंगा। तो वहां जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब को क्विट करना है। जून 2011 में मैंने जॉब को क्विट किया। जुलाई में मैंने ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फ्रेंड को कॉल करता था, उसी फ्रेंड को, हिज नेम इज रविंदर मेहता, इज माय पार्टनर नाउ। अच्छा। तो मैं रविंदर को फोन करता था कि भाई अब बता क्या करना है, अब तो लोगो लग गया मेरी वेबसाइट पे, अब बताओ आर्टिकल कैसे करने हैं। तो धीरे धीरे चीजें होती गई। फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि एक्चुअली मुझे तब समझ आ गया जब मैंने रिसर्च किया कि ऐसा तो है इस फील्ड में, राइट? तो एंड मी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो तब मैंने डिसाइड किया कि यार देखो, पैसा भी आ रहा है एंड यू आर बिल्डिंग योर अथॉरिटी एज वेल। तो उस टाइम में मनी ये गोल था, फॉर श्योर इट वाज अ गोल, बट द सेकंड गोल वाज टू बिल्ड माय अथॉरिटी, कि मैं इंडिया में ऐसे लेवल पे चला जाऊं जहां मुझे लोग जाने, जहां लोग मुझसे मिलना चाहें कि भाई कुलवंत से मिलना है। तो
मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया सितंबर 2011 में. It was kulwantnagi.com and I was sharing the tips about MLM and network marketing. And soon I got interest in the blogging. तो मैंने फिर अपना सारा का सारा जो mindset था shift किया from network marketing to blogging. And then I started talking about blogging on bloggingcage.com. And Blogging Cage was started on 15th January 2012. तो क्या उस टाइम पे when you started blogging cage, right? उस टाइम पे you are clear कि आपको क्या करना है exactly? और उस टाइम में मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर बनना है. और फिर बिकॉज आई वाज वेरी वीक इन इंग्लिश, तो मैंने पहले बैठ के ये एनालाइज किया कि ऐसे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे काम करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा ब्लॉगर बन पाऊँ. तो फर्स्ट पॉइंट वाज वीक इंग्लिश. तो मैंने इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, लिसन लॉट ऑफ पॉडकास्ट, वॉच द वीडियोस टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स, राइट. तो ये ऑब्स्टेकल जब खत्म हुआ तो नेक्स्ट वाज हाउ टू फेस द ऑडियंस. बिकॉज होता है ना, जब हम स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो हमारी टांगें कांपने लग जाती है कि यार मैं क्या बोलूं, राइट. स्टेज फियर आ जाता है. यस, बहुत बड़ा फियर होता है वो. और कई लोगों की तो मतलब हवा निकल जाती है स्टेज पे चढ़ते ही, राइट. बिल्कुल. और ये चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एंटरटेनर क्यों ना हो, उसके साथ ये होता ही है. एग्जैक्टली. तो फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप ये था कि किसी न किसी तरीके से इस फियर को दूर करना है. सो फॉर दैट आई जॉइंड सम लोकल इंस्टीट्यूट्स इन फतेहाबाद इटसेल्फ. तो मैं वहां जाके मेरे टीचर को बोलता था, सर मेरे से कुछ काम मत कराओ, मेरे को सिर्फ एक टास्क दे दिया करो रोज, कोई भी एक. मेरा रोज का काम सिर्फ ये रहेगा, स्टेज पे आके मैंने बोलना, चाहे मैं 5 मिनट बोलूंगा, आई विल स्पीक. तो उन दिनों में भी बहुत बड़ा टास्क था कि हमारी क्लास में सिर्फ 15 स्टूडेंट होते थे, बट उनके सामने भी बोलने में ऐसे होता था कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हाँ, तो मैं बोलता था, धीरे धीरे वो फियर कम होता गया. लेकिन जब रियल लाइफ में मैंने जाके ऑडियंस को फेस किया, जब स्टेज पे चढ़ा और सामने 50-100 लोग बैठे हैं, it was like it was very difficult for me. तो धीरे धीरे होता गया. अब right now I have the confidence that I can speak in front of 10,000 people also, no problem at all. That is nice. I remember जब मैंने किया था तो I was literally shaking. Exactly, होता है, ऐसा होता है. For the first few minutes I was literally shaking, and then थोड़ी देर के बाद काम होते गया सब कुछ. Exactly. पहले जो 5 सेकंड है, they are the most difficult seconds. क्योंकि उस टाइम में आपको कॉन्फिडेंस होता ही नहीं. और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप ऑडियंस में कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ लेते हो जिसके साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील. Exactly. You just talk to that particular guy and he will see in your eyes and आपको लगेगा now I just calm down and you start speaking. बिल्कुल. So when you were starting, आपने अपनी मोटिवेशन कहाँ से ली थी? आई नो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है मिडिल क्लास से, tier 2, tier 3 सिटीज से आते हैं. I know I've also come from a middle class background. मेरा कोई इतना कोई वैसा नहीं था. तो I know कि बहुत सारे लोग संदीप महेश्वरी को बहुत इन्फ्लुएंस एज अ इन्फ्लुएंसर देखते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन लेते हैं. तो when you were starting, आपका मोटिवेशन कहाँ से आया? I used to read a lot of books. I would say a lot of books on motivation. और मुझे luckily मैंने उन दिनों में एक वीडियो देखा which was on The Secret. बहुत लोगों ने सुना होगा. It's a video on YouTube called The Secret. उस वीडियो में सिर्फ ये बोला गया कि जब आप डिसाइड कर लेते हो मुझे लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो चीज मिल जाती है. तो वो मंत्र मुझे समझ आ गया था कि मुझे जाना कहाँ है. क्योंकि जब हमें पता होता कि हमारा गोल कौन सा है और हमें कहाँ जाना है, तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि रास्ता क्या होगा, राइट. तो रास्ता अपने आप बन जाता है. आपको गोल का पता होना चाहिए. बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में गोल का ही नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है. तो मेरी लाइफ में ये गोल क्लियर था कि मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है और इंडिया का टॉप ब्लॉगर बनना है. इसी माइंडसेट के साथ, इसी विजन के साथ मैं बढ़ता गया. अपने हर एक उस फील्ड पे मैंने उस एरिया पे काम किया जहाँ पे मैं वीक था. आई वॉज वीक इन राइटिंग, आई वर्कड ऑन इट. आई वॉज वीक इन कॉपी राइटिंग. मुझे ये नहीं पता था कि आर्टिकल का टाइटल कैसे लिखना है और आर्टिकल का फ्लो क्या होता है. I worked on it. I worked on my speaking. I worked on my personality, and I worked on each and every aspect which could help me to become a great blogger in India. So this is all about the mindset. Follow the right guys and read a lot of case studies about the people who are successful in their life. अच्छा. वहाँ से आपको समझ आएगा कि एक स्टीव जॉब का एक वीडियो है बहुत ही सिंपल. उसमें उसने बोला क्या था कि everything you see around you
is not Mhm. created by the people who are more smarter than you. Yes, This is exactly. created by the people who are as smarter as you, right? Hmm. So you have the potential to do everything in your life, but the problem is you don't know about your potential. Once you understand your power, once you unleash your power inside your body, then your Hmm. mind will guide you like do this, and you will start going on that particular direction and you will get your destination. It's all about the mindset. बिल्कुल. That's really inspiring. Exactly. तो you have traveled to many countries, right? पहले तो बताओ कि यार वो एक्सपीरियंस कैसा था एंड उस It's एक्सपीरियंस amazing. ने आपकी पर्सनल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट किया? Perfect. So till now I have traveled 12 countries, right? Wow. Including Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Paris, Switzerland, and Mhm. Netherlands, Hong Kong, and a lot of other countries. So it's a great experience to travel different countries and see people, because वहाँ जाके आपका mind इतना open हो जाता है. First of all, the mind opens when you spend your money in dollars, right? तो exactly, seriously, when you spend your money in dollars, तो आपका mind open होता है कि यार to spend the money in dollars, you will have to work extra so that you can earn money in dollars, right? And secondly, your mind opens when you see the people who are making millions. I met the people who are making $20,000 per day. And it was like Wow. mind-shaking figures for me. We don't even dream to get $20,000 per बिल्कुल. year package. एक साल का पैकेज भी हम नहीं ड्रीम. $20,000 means 12 लाख रुपए in India. बिल्कुल. और 12 And लाख that- रुपए का सपना होता है बंदे का कि मेरा एक साल का पैकेज लगे, बिल्कुल. right? Yeah, and they people are making $20,000 a day. तो आप क्या बोलोगे? हमारा मतलब माइंडसेट कुछ अलग है या प्रॉब्लम क्या है मतलब वहां पर? की प्रॉब्लम है बिकॉज हम उस लेवल का सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो वो इतना बड़ा पैसा है ना वो हमारे लिए है ही नहीं. हम हमेशा ये सोचते हैं कि अमीरों ने उस पैसे को पकड़ रखा है and they are capable for that money. We don't see the abundance, we see the scarcity. हमें ये लगता है कि भाई उस पैसे को पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन उनकी मेंटेलिटी क्या होती है? दे वर्क फॉर देयर ओन लाइफस्टाइल, क्योंकि उन्हें पता है कि माय मंथली एक्सपेंडिचर्स आर $5,000. सो टू लिव अ ग्रेट लाइफस्टाइल आई विल हैव टू हिट एटलीस्ट $30,000 अ मंथ. तो उनका माइंडसेट ही उसी तरीके से काम करता है. हमें ये पता होता है कि भाई मेरा महीने का गुजारा 30,000 रुपए से हो जाता है, तो मुझे सिर्फ एक रुपए चाहिए, दैट्स इट, which is $2,000. So we put the limits on our thoughts ourselves. We are the people, we are the guys who put a cap on our thoughts. Like मेरी तो भाई इतनी लिमिट है, मैं इसके बाद सोचना ही नहीं चाहता हूँ. अगर आप बोलोगे ना किसी बंदे को जाके, let's say a guy is making $10,000 a month, और आप उसको बोलो कि भाई you know if you are making $10,000 a month, it's easy to make $1 lakh a month. तो वो आपको बोलेगा भाई तू रहने दे, जो मैं जितना कर रहा हूँ उतना ठीक हूँ. बिल्कुल. तू अब तू अपने लेक्चर मत झाड़, मैं जितना कर रहा हूँ ठीक है, तेरे से तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना, $10,000 कमा रहा हूँ. सही है. So we have limited mindset. In the foreign countries, they don't have a limited mindset. They just want to grow, they just want to explore, and that's it. That's great. That's great. लेकिन क्या ये माइंडसेट के साथ डिसिप्लिन भी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, एंड वो डिसिप्लिन बहुत स्लो आता है. आई मीन आपका डेली रूटीन क्या है? व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? मेरा डेली रूटीन है, I get up around 9 o'clock, अच्छा. which is late because अभी मैंने almost 2-3 महीने ही अपना पूरा टाइम चेंज किया, because I got my eye surgery, I got laser surgery for my eyes in March, right? तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको रात को तो काम नहीं करना है. So from last 4-5 months I'm not working at night. अच्छा. So I go to bed somewhere around 10 o'clock and I get up around 8 or 9. बहुत सोता हूँ मैं. नहीं, बहुत अच्छा है. So at 11 we start the office. This is my office. I'm sitting in my office right now. अच्छा. तो होम ऑफिस 11 है? बजे, yeah, home office in my home itself. Great, great. तो 11 बजे ऑफिस स्टार्ट करते हैं, 11 बजे सारे लड़के आ जाते हैं, then we coordinate, we assign the task, and at 6 o'clock I let them go. अच्छा. So this is my routine right now. तो फिटनेस का उसके अंदर कोई है मतलब पार्ट लाइफ के रूटीन के अंदर? Fitness का, yes, at 6:30 we go to gym and we spend somewhere around 1.5 hours in the gym, and most of the time I just do the stretching so that I can
मूव माय बॉडी. मेरा ये कभी एम नहीं होता है कि मुझे इतना वेट लिफ्ट करना है, मेरा वेट मतलब आई वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर. नॉट, आई जस्ट वांट टू मूव माय बॉडी. दैट इज माय ओनली गोल इन द जिम. बिल्कुल नहीं, that is really good. I think yoga can also help a lot, right? Yeah, recently I started doing meditation also, so it's working very good for me, and I recommend each and everyone to start the meditation, because this is something which can help you to achieve your goal, to calm your mind and to be more focused. Great. So क्या वो रात में काम करने की वजह से प्रॉब्लम आया था या क्या था वो प्रॉब्लम? Actually I used to wear the specs, तो मैंने specs remove करवा दिया. That's it. अच्छा अच्छा अच्छा. मैं चश्मा लगाता था, सिर्फ चश्मा रिमूव करवाया, अदरवाइज आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अच्छा अच्छा. Because I work a lot in the night, so No problem. I'm also planning on changing my routine from night to the day, because ये coding और developing में बहुत सारा वो Exactly. involved होता है. अच्छा, रात को आराम से 10-11 बजे सो जाओ. It's good time. That's really nice. So you have also attended a lot of word camps, right? Exactly. Not a lot of two, three word camps. अच्छा. So how was that experience like? I think it's not good from a blogger point of view, to be very frank. Because at WordPress they talk about very deep things about working with WordPress. Like they deliver the speeches from the point of view of a company working with WordPress. Like आप WordPress को कैसे enhance कर सकते हो, क्या use कर सकते हो, and how to get more clients with WordPress, and how to enhance the WordPress. तो main focus उनका WordPress ही होता है. Obviously it's WordCamp, so the focus is WordPress. So मुझे इतना मजा नहीं आया WordCamp में. Being a blogger. बिल्कुल. So मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार ब्लॉगिंग का कोई सीक्रेट टिप्स या ट्रिक्स बता दो. तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे आप? The only secret tip is be focused. अगर आप जंप करते रहोगे कि मैं आज ये कर लूँ, कल ये कर लूँ, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे. प्रॉब्लम क्या आती है ब्लॉगर्स के साथ? ऑब्वियसली सारे ब्लॉगर्स फेसबुक यूज करते हैं. तो फेसबुक पे एक दिन आपको दिखता है कि भाई एक बंदा बोलता है आज मैंने एडसेंस से पैसा कमाया, तो आपका माइंड घूमने लग जाता है भाई एडसेंस इज गुड. नेक्स्ट डे एक बंदा आके बोलेगा मैंने एफिलिएट से पैसा कमाया, तो आपका दिमाग घूमेगा एफिलिएट इज गुड. तीसरे दिन आके बंदा बोलता है यूट्यूब इज गुड. चौथे दिन आके एक बंदा बोलता है शॉपिफाई इज गुड. तो आप जंप करते रहते हो चीजों को, तो आप फाइनली क्या होता है सक्सेसफुल नहीं हो पाते. बिकॉज इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड. व्हेंस योर माइंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इंफॉर्मेशन यू कांट टेक द एक्शन. सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इस डायरेक्शन में जाना है. बिकॉज व्हेन यू डिसाइड कि मुझे ब्लॉगिंग में जाना है, तो ब्लॉगिंग में भी डिसाइड करो कि दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांट. अगर आप सोचोगे कि भाई मैं अपने ब्लॉग के थ्रू एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी बन जाऊं, एक वर्डप्रेस एक्सपर्ट भी बन जाऊं, एक ब्लॉगर भी बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल बट आफ्टर सम इयर्स. बट फॉर बीइंग ए ब्लॉगर, फॉर बीइंग ए न्यूबी ब्लॉगर, focus on one thing and be expert in that particular thing. Cool. That's such a great advice. So बहुत सारे लोग ना हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हैं और समझते हैं यार इनकी लाइफ ना बड़ी सेट है, सक्सेस के पीछे ना they don't see the grind, hustle, the stress, कुछ नहीं देखते. वो लोग को लगता है यार मजा है इनका. तो my question is क्या, how do you manage to work hard on the daily basis? To manage on like to work hard on daily basis, your goals should be clear. मैं दोबारा उसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, goals. जब आपको पता होता है कि लाइफ में कहाँ जाना है, तो आप उसी तरीके के एफर्ट्स भी डालते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लास्ट ईयर मैंने एक गोल बनाया कि मुझे इस साल $1 लाख बनाने हैं. मुझे मेरा गोल क्लियर था कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर आई वांट टू मेक $1 लाख. तो मेरे एफर्ट्स उसी लेवल के थे. आई वाज वर्किंग डे एंड नाइट, finding this, finding that, trying different things. मुझे अपने गोल का पता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था किस रास्ते से जाना है. तो हर बार क्या होता है जब आप गोल बना लेते तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं. तो मैंने जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैलकुलेट किया कि चलो देखें टोटल कितना पैसा बनाया. So my CA told me that you made $90,000 in this financial year, which was not $1 lakh, but it's still good. Like $90,000 is a good. That is good. Yeah. So now the thing is clear that आपको एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए उस लेवल के एफर्ट तो डालने पड़ेंगे. सो वो मोटिवेशन अपने आप में खुद से ही आ जाएगा उस लेवल पे काम करने का. बिकॉज सी दिस ईयर वी मेड अ गोल ऑफ $1 million, राइट? सो वी आर वर्किंग एट दैट लेवल, वी आर वर्किंग एट 10x लेवल. हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं. अभी
नवंबर में मैं ब्लॉगिंग का इवेंट प्लान किया मैंने, जहां आई एम द ओनली स्पीकर. So we are expecting 400 to 500 people as the attendee in that particular conference, and we are doing it in Delhi. तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि जिस गोल को अचीव करना है. बिकॉज सी, अभी मैंने जैसे अपनी वॉल पे पोस्ट किया तो लोगों ने बोला कि यू आर डूइंग इट फॉर मनी. माय आंसर इज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द मनी, राइट? बिकॉज आई वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर. हो सकता है यहाँ पे मैं जब अपना कॉन्फ्रेंस डिलीवर करूंगा मुझे किसी और कंट्री से कॉल आ जाए, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, और किसी एक कंट्री से कॉल आ जाए, कुलवंत यू आर डूइंग गुड एज ए स्पीकर, so we want to invite you in Singapore and we are ready to pay you $20,000 for a week. So it's good. So I'm working for that particular level. So तो the answer is, जब आपको अपनी चीजों का पता होता है तो वो मोटिवेशन अपने आप से आ जाता है और वो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं कि किस रास्ते पे जाना है. Nice. So how in this whole process, how do you keep yourself positive? Reading a lot of books, watching a lot of videos, and reading a lot of case studies कि लोग क्या कर रहे हैं. अच्छा, मेरा mindset, मेरा सिर्फ एक फॉर्मूला है, if he can do then I can do. Exactly. As simple as that. Great. So what kind of books would you recommend to people? You can go to bloggingcage.com/library. अच्छा. bloggingcage.com/library. वहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक्स को मेंशन किया है, कौन कौन सी बुक्स मैं पढ़ता हूँ और कौन कौन सी मेरी फेवरेट बुक्स हैं. सो यू कैन, कुछ बुक्स को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ. द वन बुक इज द $100 Startup. इट्स वेरी गुड बुक. एंड अनदर बुक इज द E-Myth Revisited. दिस इज अनदर ग्रेट बुक. एंड अनदर वन इज Rework. इट्स वेरी Jason Fried और 37 Signals वाली. एग्जैक्टली. सो ये बुक्स आप पढ़ सकते हो टू गेट द मोटिवेशन. Great. देखिए, क्रिएटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स को बंच ऑफ आइडियाज आना इज नथिंग न्यू, राइट? बट हैविंग एन आइडिया इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेज. एग्जैक्टली. आइडिया को फिर एग्जीक्यूशन लाना इज द नेम ऑफ द गेम, राइट? सो हाउ डू यू, व्हाट्स योर प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन आइडिया? तो हम पहले आपने बहुत सही कहा कि आइडियाज आज के टाइम में हर किसी बंदे के पास आइडिया है. आज के टाइम में किसी के पास भी चले जाओ, भाई तेरे पास कोई आइडिया? हाँ यार मेरे पास आइडिया, मेरे पास ये आइडिया है. हर किसी के पास कोई आइडिया है. बट उसमें से बहुत सारे लोग, आई वुड से ओनली 2% लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन लेते हैं. बिल्कुल. 2% में से भी आगे 2% लोग वो होते हैं जो आगे तक जाते हैं. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक सक्सेसफुल होने का रेशियो क्या है. इट्स इट्स 0.002%. बिल्कुल. तो आइडियाज होना और आइडिया को एग्जीक्यूट करना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. एंड एग्जीक्यूशन करने के बाद एक बड़े लेवल पे ले जाना, दे बोथ आर डिफरेंट. द वेरी फर्स्ट थिंग वी सी इज, जब भी हम कोई किसी आइडिया को देखते हैं तो वी डिग डीप. हम उसके एक पोटेंशियल को समझते हैं. अभी तक तो मैंने प्रैक्टिकली किसी ऐसे बड़ी आइडिया पे काम नहीं किया है, तो मैं उसको ब्लॉगिंग की टर्म में समझाना चाहूंगा कि हमें अगर कोई भी निश अगर मिलता है तो हम उस निश को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस पर्टिकुलर निश में किस पर्टिकुलर चीज को पिच किया जा रहा है. लाइक जब भी हम कोई चीज मार्केट में बाय करते हैं, आइदर वी बाय फॉर द हैप्पीनेस और वी बाय फॉर द फियर. बराबर. ठीक है. तो हमें या तो किसी चीज का डर होता है इसलिए हम बाय करते हैं. लाइक हम घर में मच्छर मारने वाली क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि मच्छर हमारी सेहत को खराब करेगा. और आईफोन हम क्यों खरीदते हैं? बिकॉज वी फील हैप्पी, राइट? तो हम उस फैक्टर को पहले समझते हैं कि कोई एक बंदा इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो किस पर्टिकुलर चीज को हमें पिच करना है. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, लोग वहां पैसे ज्यादा खर्च करते हैं जहां पे वो हैप्पी नहीं होते. अच्छा. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक बंदे को बोल रहा हूँ कि दिस इज iPhone 7, दिस इज फॉर 70,000 rupees, but I just found that you have a disease which can result your death and it will cost you 2 lakh rupees to get rid of that disease. तो क्या आप आईफोन खरीदोगे या पहले उस बीमारी के लिए पैसा लगाओगे? बीमारी को ही सॉल्व करोगे. ऑब्वियसली बीमारी के लिए पैसा लगाएंगे. तो हम पहले वो डिस्कवर करते हैं कि कैसी उस पर्टिकुलर बंदे की माइंडसेट पे कहाँ जाके हिट करना है. एंड देन हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, हम उस पर्टिकुलर निश को बहुत अंदर तक जाते हैं. हाउ मेनी सर्चेज ऑफ द कीवर्ड्स आर देयर, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम गूगल में रैंक करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा. एंड देन वी स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट एंड देन वी डू इट. This is how we proceed. That's great.
So do you keep any short term goals and long term goals ऐसे कुछ? शॉर्ट टर्म गोल्स ऑब्वियसली हम एक पूरी वेबसाइट को बहुत पहले ये डिफाइन, मेरा जो प्रोसेस है दैट इज वेरी वियर्ड, बट वी डू इज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, डोंट पुट एनी एड्स, एनी एफिलिएट, एनी शिट ऑन द वेबसाइट, वी जस्ट फीड द कंटेंट विद जीरो लिंक्स एंड वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द वेबसाइट टिल इट गेट्स रैंक्ड। जब वो रैंक हो जाती है उसके बाद हम प्रॉपर एफिलिएट इंसर्ट करते हैं, प्रॉपर एडसेंस, जो भी जहां भी जिस तरीके की चीज चाहिए होती है वेबसाइट पे। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे बिगिनर्स हैं, व्हेन यू से कि वेबसाइट इज रैंक्ड, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? Like if people are searching for that keyword, then my website is somewhere in the Google search results, right? So लोग Google पे जाकर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, मेरी वेबसाइट कहीं ना कहीं सर्च रिजल्ट में आती है। उसके बाद जब थोड़ी ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आ जाती है तो फिर हम और अंदर जाके स्टडी करते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको ज्यादा देर लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। तो वहां से हमें थोड़ा और यूजर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड देन वी put the affiliate links and then finally we monetize the blogs. This is how we go. Right. So देखिए, blogging is one thing, right? But then hiring people and managing them and getting the work done is a very different thing. वो एकदम next level वाली चीज है। Exactly. Blogging करना और people manage करना बहुत different है। So how do you go from being a blogger to having a team? Okay, so great question. So what I do here is I have content writers. उनका काम है सिर्फ और सिर्फ content writing करना, right? And then I have people who do the SEO for me. उनका काम है सिर्फ SEO करना। तो content writer को नहीं पता है कि SEO कैसे होती है, क्या होती है, right? और जो SEO वाले बंदे हैं, they are not good in content writing. तो मैंने अपनी टीम को separate कर रखा है because वो अकेले किसी काम के नहीं है, right? And we pay very well to all our writers and SEO guys. So that's great. That's great. It's a relation. So आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? लेकिन because बहुत सारे लोग समझते हैं यार पैसा आ गया तो you do a lot of, you can do a lot of things, but people don't understand कि पैसे के साथ a lot of responsibility also comes, right? Exactly. So, the definition of the success to me is when you see your family smiling and you can travel the world without any worry. That is the success. And if you talk in terms of money, the success is I would say a stage when your family is no more fighting for the money and love. That's a great message, I think. Yeah. I think that will inspire a lot of people, and I really think वो एकदम right message था जो आपने दिया। तो what are some emerging trends that you see in the blogging industry as of now? Blogging industry. हाँ। Yeah, blogging में अभी recently तो people are more interested in reading about the case studies कि भाई बताओ आपने कैसे किया। Case studies are working very good. They are getting very good attraction, very good attention. So case studies are working very good in blogging right now. Just write what you know. That's it. That's great. So बहुत सारे लोग ना ये वीडियो देख रहे होंगे, वो अपने करियर की और लाइफ की अलग-अलग स्टेज पे होंगे। So if you were to give one tip to them, what would that be? Be focused. That's it. Decide what you want, and nature will help you to get that thing. That's it. Yeah. Great. That is great. So thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you so much. I think ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, and thank you so much for your time. We'll definitely catch up next time. Okay, guys, अगर आपको, if you want to know more about Kulwant Nagi, be sure to subscribe his blog and visit him on bloggingcage.com, right? Yeah, exactly. And follow him on Facebook and Twitter as well. Thank you so much for your time, Kulwant. Thank you. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hit. Not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.
What?